Assalamu alaikum everyone and welcome to another live webinar. Blink presents Digital Disruption. This is our sixth episode and we have a very interesting topic today, very relevant और दो बहुत ही interesting guests हैं हमारे पास. आप I'm sure दोनों से बखूबी वाकिफ होंगे. So हम आज discuss कर रहे हैं कि why do F&B owners, restaurants need influencer marketing in this day and age? And for that we have our very own Hamza Bhatti and Tala Bhatti with us. So with that, I would say Assalamu alaikum to the Bhatti Bradran. Welcome to Digital Disruption. How are you both? वालेकुम सलाम। Hello, Assalamu alaikum and good afternoon. Walaikum salam. Alhamdulillah. So I think this event has received a lot of anticipation from our followers. So we'll get straight to it. क्या कहते हैं बहुत ही interesting और दिलचस्प topic है ये. Influencer marketing has been on the rise since the last few years. And now more than ever, it's really creating an impact in increasing sales for brands. चाहे वो F&B हो, e-commerce हो, electronics, consumer brands, etc. Right? So आप लोग बताएं कि आपने कब decide किया कि this is a career path that you're going to pursue or you're going to do it full time? What was that moment? Anyone can start. क्या कहते हैं? Yeah, I mean, first of all, thank you for having us. We appreciate the opportunity. So I believe Talha and I have been in the influencer slash digital space for the past almost a decade, I believe. MashaAllah. And we've been trying and testing a lot of stuff. I think Talha has probably run 3 or 4 businesses. I have run a couple of businesses, and it's interesting. The influencer thing worked for both of us, right? Because technically it could have been case maybe एक बंदा software house बना लेता है कुछ कर लेता, but Yeah. we cracked the influencer thing and we realized okay, you know what? Because I'm gonna come directly to your point. Yeah. Um, we did the influencer thing and we were like, okay, the fact is that we are not going to stay influencers for the rest of our lives. I mean, yes, we are at our peaks, you could potentially say, but we're not going to be, maybe in 3 years, 4 years time, nobody knows who Hamza Bhatti or Tala Bhatti is. Okay? So the idea of Bhatti Biryani, one of the reasons was also the fact that we know कि हमारा एक लाइफ साइकिल है जिस टाइम तक हम रेलेवेंट रहेंगे एंड बट वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू नाउ इज टू मेक श्योर कि जब तक हम रेलेवेंट हैं तब हम कोई चीज लॉन्च करें इंस्टेड ऑफ सेइंग ओ जब हमजा भट्टी तला भट्टी को कोई नहीं जानता अब हम आला बेटा कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं बिकॉज ये राइट तो आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस व्हिच आई पर्सनली फील इज कि आई वांटेड टू मेक श्योर कि हम कुछ चीज स्टार्ट करें एंड द अदर थिंग वाज आई गेस दिस वाज अ म्यूचुअल थिंग तलहा एंड आई वी आवर मदर was probably one of the best cooks anybody any anyone could have. So बिल्कुल. and we genuinely wanted this for our mom as well, for ourselves obviously, but for our mom as well, because we realized कि because उनका अपना ख्वाब था, she wanted to do this as well. So we took that and here we are. Alright, nice, interesting. इसमें आपने दो तीन काफी इंटरेस्टिंग चीज कही हैं उस पे आई लाइक टू एक्सपैंड अ बिट राइट. सो पहले तो एक चीज से मैं इख्तिलाफ करूंगा कि आपका जितना डिजिटल फुटप्रिंट है सो यू बोथ विल बी रिमेम्बर्ड फॉर मतलब डेकेड्स. क्या कहते हैं कंटेंट कंपाउंड्स और इंशाल्लाह मतलब Yeah, perhaps. मेहनत है वो रहेगी. दूसरा, हाउ डिफिकल्ट इज इट इज टू स्टार्ट अ बिजनेस विद इन द फैमिली. क्या कहते हैं देयर इज लाइक कॉन्फ्लिक्ट. आप किस तरह हाउ डू यू सेट अप अ बोर्ड. ऐसे दिस में इज ना इसमें बेसिकली इस तरह आता है कि अगर अब हमजा मैंने बाकी सारा तो एक्सप्लेन कर दिया। हमारी फैमिली चलती आ रही है पिछले कोई 5 पुश्तों से, आर्मी और गवर्नमेंट सर्विस, अम्मा सही. वाली साइड से भी और अब्बा वाली साइड से भी। तो जब हम इवन कंटेंट भी हमने बनाना शुरू किया ना, तो वी वर लाइक वो ब्लैक शीप वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, वी वर द ब्लैक हाँ. शीप ऑफ द फैमिली। कहाँ पर निशाने हैदर और पता नहीं क्या क्या चलता आ रहा है, और उसके बाद हम लोग ये कंटेंट बना रहे हैं। तो बिजनेस का भी ना एक था, एक तो ये अम्मा वाली साइड से था कि हर खानदान में ना एक खातून होती है जिनका खाना बड़ा मशहूर होता है, बिल्कुल. और हमारी अम्मा वाज ऑलवेज दैट पर्सन। तो हम हमेशा से प्लान किया करते थे, हमें पता नहीं था कि हम क्या करेंगे, पर एक था। और एक बिजनेस का भी था माइंडसेट शुरू से ही। ये जो कंटेंट क्रिएशन वाली साइड भी, अगर आप इसको एक बड़े बर्ड्स आई व्यू देखो ना, कंटेंट या क्रिएशन इज बेसिकली अ बिजनेस। या क्योंकि शो में तो कोई भी कंटेंट बना सकता है, बट मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ इट इज डिफिकल्ट। एग्जैक्टली. तो वो उस वजह से जो है ना, मतलब दीज वर द फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूटेड टू अस स्टार्टिंग भट्टी वेरी बिरयानी। गुड.
सही, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मतलब हॉबी या साइड हसल तो कोई भी कर लेता है, बट मेकिंग अ बिजनेस आउट ऑफ इट इज रियली वेयर व्हिच डिफरेंशिएट्स एवरीवन, राइट? सो व्हाट वाज दैट मोमेंट? कौन सी आपकी पहली कैंपेन वायरल हुई? क्या वो पॉइंट था जब आपको लगा कि नाउ वी कैन मेक कंटेंट क्रिएशन अ बिजनेस, या वी आर कट आउट फॉर बीइंग इन्फ्लुएंसर्स? आई वुड से खैर मेरे केस में तो आई रिमेम्बर 2022. This सही। was, by the way, the interesting part is, I think Talha and I are we're really blood brothers. Matlab, I'll tell you how that is. I was making content for what 4 5 years at that time by 2022, and well, har kisam ka content I had done all kinds of stuff. But I remember Talha mentioning this to me and saying, "कि Hamza bhai, yaar, you know what? मतलब आपका कंटेंट लॉन्ग फॉर्म होता है ठीक है बट लाइक आप ना वो शॉर्ट 1 मिनट वीडियोस बना के देखेंगे कि यार 1 मिनट वीडियोस." But I was like, okay, why not go try and then let's figure out, go figure. तो हमने ये किया कि मुझे याद पड़ता है कि रैंडमली मैंने इस तरह सोचा कि यार रमजान 2022 था बिल्कुल। and I was working a full-time job with the European Union as a digital consultant. बिल्कुल। And so I was like, okay, you know what? Let's give it a shot. So मैंने वो 1 minute videos डालना शुरू की. Now this is interesting considering I put up 22 videos in Ramzan, वो which did over 100 million views for the first time ever in Pakistan's Instagram reel history. Reel का concept भी उस time पे नहीं आया था जब हम reels बना रहे थे. And that was where I went from 10,000 followers to some 200,000 followers. And that is it was a turning point of my life where I was like, okay, you know what? I probably need to pursue this full time because I can now make money जो कि मुझे EU महीने में पे करता है वो मैं एक दिन ब्रांड पार्टनरशिप से बना रहा हूँ. So I think कि एग्जैक्टली। वो चीज ऐसी थी once it hits you then you realize oh wow that कि ये भी हो एग्जैक्टली। सकता है. I think only figure out when you know. So I think that is where it happened for me. I think Tala might have something different for us. ये चीज है, हम दोनों का जो है ना, जो ग्रोथ फैक्टर था, यू कैन कंसिडर अस लकी और वट एवर, पर जिस टाइम पे रील्स, मतलब इंस्टाग्राम वाज थिंकिंग अबाउट कॉपिंग टिकटॉक एंड ब्रिंगिंग Yeah. इन रील्स, वी वर ऑलरेडी मेकिंग Already रील्स. मुझे doing it. याद है Yeah. Yes. कि जब व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ ऑन इंस्टाग्राम, तो उस वक्त ज़माना चल रहा था जिस वक्त बड़े बड़े क्रिएटर्स जो हैं, अगर सलमान अली दीना इज ऑल्सो वन ऑफ देम, पिक्सल Yeah. परफेक्ट, इस तरह के बड़े क्रिएटर डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स बना रहे थे, और वो 15 से 20 मिनट तक, और उनकी ऑडियंस ऑब्वियसली बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की थी. बिल्कुल। पर मैं बनाना चाहता था डिज़ाइन ट्यूटोरियल्स, और मुझे नहीं पता था कि मैं इन लोगों के साथ कैसे compete कर सकता हूँ. सो वो सब कुछ जो वो 15-20 मिनट में सिखा रहे थे, आई स्टार्टेड मेकिंग 1 मिनट ट्यूटोरियल्स फॉर दोज. और उस वक्त अभी इंस्टाग्राम रील्स का नामो निशान भी नहीं था, उस वक्त एक वीडियो फॉर्मेट बस था. लेकिन Yeah. वो इतना क्रेजी चला कि मुझे याद है आई गेन 170,000 फॉलोअर्स इन जस्ट वाह। 1 ईयर. Mm. वाह। तो इट वाज क्रेजी. और फिर जब रील्स का बूम आया तो हमने इतने फॉलोअर्स गेन किए क्योंकि हम ऑलरेडी वो बना रहे Oh. थे, मार्केट वाज गोइंग टुवर्ड्स. तो बेसिकली ये फैक्टर था हम दोनों के लिए, आई वुड से. नाइस, नाइस, इंटरेस्टिंग. सो दो चीजें जो मुझे समझ आ रही हैं, एक है यू हैव टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व, और दूसरा यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. ठीक है, लक हैज समथिंग टू प्ले इन इट, बट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, बार बार कंटेंट नहीं बना रहे, और आप थोड़ा सा फोरसाइट के साथ पहले नहीं लॉन्च कर रहे, सो इट विल बी डिफिकल्ट, राइट? यू नीड लक, बट यू नीड टू बी अहेड ऑफ द कर्व एंड यू नीड टू हम्म. कंसिस्टेंट, राइट? सो स्पीकिंग ऑफ दिस, अब क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ आवर ऑडियंस इज रेस्टोरेंट ओनर्स, ऑफ F&B इंडस्ट्री के लोग होते हैं, और फूड की रील्स और फूड रिव्यूज और ये फूड की लिस्ट रैंकिंग्स आजकल बहुत ज़्यादा मेन स्ट्रीम हो गई हैं, राइट? सो आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि वाई इन्वेस्टिंग इन सच कंटेंट, कि आप किसी इन्फ्लुएंसर से अपने रेस्टोरेंट के बारे में कोई रील बना दें या कोई डील पब्लिश कर दें, ये किस तरह एक रेस्टोरेंट को बेनिफिट करता है? व्हाट इज द बैक एंड मैकेनिक्स ऑफ इट? So I believe कि at the end of the day, marketing has been obviously here since forever. But the fact is, we usually used to look at marketing as TV ads or flyers or radio ads and whatever. Obviously, the social media came, but like social media, I think now has evolved, and the influencer marketing thing came in. And once it came in, then we started to realize. I believe because again, if you look back at in go back 20 years, so I remember कि मेरे idols or heroes were Wasim Akram, Waqar Yunus, Junaid Jamshed, and the likes, right? Um,
but these were the TV personalities, and the fact is you were never able to have a chat with them, KR Sharon, or to learn from them. I think that because of the social media thing now, obviously I have now idols which are more accessible. You can technically reach out to them, and अगर आपका काम अच्छा है तो they'll be like, हाँ भाई यार, let's work together. Um, मैं ये देखता हूँ कि कंटेंट अब ऐसे जगह पे आ गया है, स्पेशली फॉर रेस्टोरेंट्स एंड ऑल. देखें, द फैक्ट इज कि एक रेस्टोरेंट, चलो ठीक है, लेट्स से इट डज पेड मार्केटिंग, ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग करता है, उसने कोई किसी कंपनी को हायर किया, वीडियोस बनाई है वो, बट द फैक्ट इज कि उसके पीछे कुछ सोल नहीं है. A बिल्कुल. creator brings that soul. A creator brings his or her own personality to your brand. And so Interesting. not just obviously, no, it's not कि वो either tech का है या food का है. More or less it works. आजकल तो वो हम देखते हैं, सबसे फनी बात है कि हमारी माशाल्लाह से फीमेल पाकिस्तान की, इस्लामाबाद की जो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है ना, वो हर जगह पहुंची हुई होती है, ठीक है. I mean, but it works for them because they have, and I have no problem with that because they have that kind of audiences. ठीक है, if you have a 500,000 people, 1,000,000 people, you might be a beauty blogger, but the fact is कि उसमें खाने वाले लोग भी होंगे, उसमें टेक वाले लोग भी होंगे, उसमें हर किस्म का बंदा होगा. So, but yeah, coming back to the point, what it really brings to you is, as I said, it's the personality of the influencer, and people come to you because of the influencer. Oh, Yeah. because I saw XYZ's reel, or I saw some XYZ's post, and it enticed me to think, okay, you know what यार, वीकेंड पे और तो कुछ वैसे भी इस्लामाबाद में हमारे पास करने के लिए होता नहीं है, चल भाई रेस्टोरेंट चलिए. आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे, लाहौर और कराची, लाइक बेसिकली अगर Exactly. पाकिस्तान को उठा के देखें तो फूड इज दैट वन थिंग, एंड आई टेल यू व्हाई. That is also the reason why food does so well. Food content does so well in Pakistan because people usually are just scrolling and to see some of those food videos, and then you're like, अच्छा भैया अब हम आपके recommendation पे खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है. तो the market is obviously huge. The potential is there. We have seen restaurants, we have seen dhabas turn into restaurants because of content, बिल्कुल. right? बिल्कुल. So I think the impact is there to for everybody to see. नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है. सो तला भाई, इफ यू कैन एक्सपैंड ऑन द कोलैबोरेशन पार्ट. सो क्या कहते हैं, हमजा भाई ने बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन का बात किया. आई ऑल्सो बिलीव द फ्यूचर इज इन कोलैबोरेशन. पहले होता था कि वील गेट वसीम अकरम और वो आके एरियल बेच देगा, क्या कहते हैं, और करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे कैंपेन में. बट नाउ आई थिंक वी हैव टू बी मोर स्मार्ट, क्या कहते हैं, कोलैबोरेट ज़्यादा करने. Maybe one niche of an influencer has an audience which services your needs require, right? So इस पे थोड़ा expand करें तला भाई. हाँ, हमजा भाई ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज द पावर ऑफ एन इन्फ्लुएंसर. और उसमें यही आ जाता है कि आपका जो ब्रांड है ना, पहले आपको यू हैव टू स्पेंड मिलियंस ऑन द बिलबोर्ड्स एंड द टीवीसीज एंड एवरीथिंग. और अब क्या है कि आप टेस्टिंग ज्यादा कर सकते हो. अब आज ये है ना कि देयर माइट बी अ क्रिएटर आउट देयर जिसके खाली 50,000 फॉलोअर्स हों. असल में फॉलोअर्स मैटर भी नहीं करते, बिल्कुल. आपके Yeah. एंगेजमेंट ज्यादा ये मैटर करती है. फन फैक्ट, मेरी फॉलोइंग हमजा भाई से ज्यादा है, पर हमजा भाई की फॉलोइंग बहुत ज्यादा क्रेजी है, ठीक है, क्योंकि नीच टू नीच डिफर भी करता है. मेरी टेक Correct. थोड़ी बोरिंग सी एजुकेशनल और टेक साइड के ऊपर, हमजा भाई का इधर ना थोड़ा एडवेंचर और खाना खापा रिलेटेड है. तो उस लिहाज से ना बड़ा फर्क पड़ता है. तो जो ब्रांड है ना, उसको टेस्ट करने का बड़ा मौका मिलता है. वो ये नहीं है कि पहले उनके पास ऑप्शन होते थे कि वो एक बड़ा मूवी स्टार उठा लें या क्रिकेट स्टार उठा लें. अब क्या है कि वो उस सेम बजट के अंदर दे कैन हायर मे बी 10-20 स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स, और उसके थ्रू वो टेस्टिंग ज्यादा कर सकते हैं. और देर इज अ पॉसिबिलिटी कि बल्कि वो मैंने हमजा भाई के साथ देखा था, हमजा भाई ने शुरू में टम्फा के लिए ऐड किया था. वो Yeah. इतना Yeah. क्रेजी चला कि उन्होंने कहा कि Yeah. आपके साथ भी हमने किए, और आई वोंट टेक एनी नेम्स, हमने और लोगों के साथ भी काम किए, और Huh. जो आपसे रिजल्ट मिला है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है. There is. I'll expand on this. KFC has done something. I think I can reveal this here now. So KFC has done something which none of us thought, works, that it could work like that as well. Yeah. Okay, so I went to the agency, KFC की agency, and I asked them, यार, I was like, यार बासनो, तुम्हारे पास KFC है, but I've never seen KFC advertised. Like Yeah. मैंने कभी KFC, and they said something very interesting, and I was shocked कि यार ये कैसे कर रहे हैं. दे लाइक यार देखें, हम लोग बड़े इन्फ्लुएंसर्स को लेते ही नहीं है अपने कैंपेन्स के अंदर. हम चाहते ही नहीं है कि कोई हमारी दिस इज लाइक टोटली ऑपोजिट टू व्हाट वी ऑब्वियसली डू, बट दिस इज हाउ व्हाई इट्स सो इंटरेस्टिंग कि हम इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम हमजा भट्टी, इरफान नेजो और जुनैद अकरम और 4-5 बड़े इन्फ्लुएंसर लें, हम कहेंगे कि हम 200 छोटे इन्फ्लुएंसर, माइक्रो इन्फ्लुएंसर ले लेते हैं. और होता क्या है
कि हम जब वही वीडियो कोई 200 माइक्रो इन्फ्लुएंसर पे लगाते हैं जिसमें से 4 या 5 वीडियो वायरल हो जाती हैं, तो या जब कोई बंदा बैठ के देखता है यार कि यार ये तो किसी पॉपुलर इन्फ्लुएंसर ने नहीं लगाई हुई, ये तो किसी नॉर्मल मुझ जैसे बंदे ने लगाई हुई है जिसके हाल में मुझसे हार्डली 1000-2000 फॉलोअर्स आते हैं, तो द बाइंग पॉसिबिलिटी आप ऑटोमेटिकली अपनी रीड ज्यादा बढ़ा रहे हैं बिकॉज वो ऑर्गेनिक लगता है। And इंटरेस्टिंग। the process is called seeding. And I was blown. I was like, भाई हम तो मतलब गए, मतलब अगर लोगों को ये समझ आ गया ना तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। But नहीं, alhamdulillah, I think we provide a different, we cater to a very different kind of we cater to the FMCGs, we cater to a lot of the big brands which want the influencer to be able to speak as well as not just tell कि अच्छा भाई ठीक है भाई आज मैं ये खाने आ गया हूँ, और because they need building a perspective and all. So I think it's the now you will also understand the influencer model is way more complicated than what you would assume it is. So I या think that's our. नहीं नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ी काउंटर इंट्यूटिव सी ये ऑब्जर्वेशन है आपकी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द बिग इन्फ्लुएंसर्स गो फॉर लाइक डजन्स ऑफ स्मॉल इन्फ्लुएंसर्स, लाइक इंटरेस्टिंग। Yeah, अभी yeah. थोड़ा गेयर्स शिफ्ट करते हैं टुवर्ड्स ब्रांडिंग, क्रिएटिव साइड, ऑथेंटिसिटी सही है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है ब्रांड बिल्डिंग में, राइट? सो इफ यू आर वर्किंग विद इन्फ्लुएंसर्स, हाउ कैन यू इंश्योर कि आपकी जो एक ऑथेंटिसिटी ब्रांड की बन रही है, क्या वो इन्फ्लुएंसर के लाने से कॉम्प्लीमेंट हो रही है, क्या वो डिस्टर्ब हो रही है? हाउ डू यू बैलेंस दैट आउट? I would say कि what matters most is कि यार what are your brand values, ठीक है, and does the influencer that you're working with क्या उसकी सेम किस्म की ऑडियंस है? And so now I'm not going to take names here, but the fact is कि देखें, there are types of creators. Not just you can't just go on the basis of कि अच्छा इसके कितने फॉलोअर्स हैं। आपने सही। ये देखना है, देखें कल को अगर नेस्ले है या आई डोंट नो कोई बड़ा एफएमसीजी है एंड ऑल, और वो अपना नाम किसी के साथ जोड़ रहा है, तो उसको एक चीज जरूर पता है कि अगर कल कोई ये इन्फ्लुएंसर ने कोई पुठी चीज की तो हम लोग बुरे होंगे। या So I think when you're choosing influencers, you're always looking at a good mix of influencers. But the reason I've seen some of us get more work as compared to those influencers who have more following than us is because of the brand image that we have built for ourselves. ओके। Because you know what's happening? One, when these big brands come and work with us, they're basically taking the advantage of our brand image as well, what we have built. तो देखें, एक तरफ आप कहोगे ठीक है यार सोनी आके हमजा भट्टी के साथ काम करते हैं, और ठीक है लाइक ठीक है, हम हमजा भट्टी के लिए बहुत बड़ी चीज होगी यार कि सोनी काम कर रहा है। बट आपको शायद ये नहीं पता कि एक टाइम ऐसे आ चुका है कि सोनी के लिए इरफान जनेजो या हमजा भट्टी के लिए काम करना बड़ा एज कम्पेयर टू लाइक देम डूइंग समथिंग देमसेल्व्स, बिकॉज दे नो फॉर अ फैक्ट अबाउट ब्रांड इमेज और व्हाट काइंड ऑफ क्रेडिबिलिटी वी ब्रिंग टू देम। सो आई वुड से कि it varies from person to person. I would say कि when you're choosing influencers, you can always say कि okay, let's go with 2 or 3. अगर आप let's say if you're choosing 10 influencers, you say यार दो से तीन we just go for these big guns, ठीक है, या because we want, obviously ठीक है, we want to have that image attached with us. But then you experiment with 2 or 3, but you see like okay, these people have more influence, but इनके इतने followers नहीं है, इनकी reach अच्छी है, and या we can always have 1 or 2 wild cards and say well, let's go and try these out. So but yeah, I would say कि there's no formula to it, but I या would say कि मैं जिस तरह जितनी भी campaigns की हैं वो आज तक ऐसे ही हैं कि ठीक है, let's take 2 celebrities, 2 tier 1 tier A influencers, let's take 2 tier B, and let's take 2 tier 5 tier C influencers, तो इस तरह। मेक सेंस। तलब भाई, टू डिस्कस द फ्लिप साइड ऑफ दिस, एक इन्फ्लुएंसर क्या सोच रहे होते हैं व्हेन चूजिंग अ ब्रांड या ब्रांड अप्रोच? किया यू सेइंग यस टू ऑल वर्क, या यू आर अलाइनिंग विद देयर वैल्यूज और आप देखते हैं कि इस ब्रांड के साथ काम करने से मेरा काम भी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है? व्हाट्स द साइंस बिहाइंड दैट, क्या कहते हैं, चूजिंग ब्रांड्स फॉर इन्फ्लुएंसर्स? या हाँ, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, बिकॉज ज़्यादातर लोग जो है ना, और यही होता है। जब हमने भी स्टार्ट किया तो वी वर सेइंग यस टू एवरीवन, बट इवेंचुअली यू रियलाइज कि आप अगर हर किसी को हाँ कर रहे हो ना, तो आपकी जो वैल्यू है ना वो सेम नहीं रहेगी, और आपकी ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी। अब मैं आपको या बताता हूँ, व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, तो मैंने कपड़ों से लेके हर चीज़ की जनरल प्रमोशन में कर रहा था। देन आई रियलाइज कि इस तरह चल नहीं सकता। अभी जो है मैं स्ट्रिक्टली टेक के ऊपर आ गया हूँ। हाँ, मुझे कोई चीज़ भेज देता है, जैसे कि रिसेंट एक बंदे ने मुझे वो भेजा, कवर भेजा मोबाइल का, अगेन टेक के या रिलेटेड ही है, लेकिन
मैंने उसको कहा यार जो इस तरह की चीजें उनके ऊपर मैं स्टोरी आपको लगा दूंगा, ठीक है, वी कैन कोलैबोरेट ऑन एग्जैक्ट। अ स्टोरी। लेकिन अगर आप प्रॉपर एक रील चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि आप एक टेक प्रोडक्ट हो। और मेक उससे ये होता है कि व्हेन यू लिमिट योर सेल्फ टू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ ब्रांड्स ना, तो यू गेट मोर ऑफ दैट वर्क। एक तो ये है कि आपकी ऑडियंस खुश है, सही। आप खुश हो क्योंकि आप वो काम करना चाहते हो, और ब्रांड खुश है बिकॉज ब्रांड को ज्यादा एक बेहतर एंगेजमेंट मिलेगी। मुझे अक्सर होता है कि आपके भाई भी फूड का कंटेंट करते हैं तो आप भी हमारे लिए, क्योंकि आप सस्ते में कर दें। मैं कहता हूँ बात बात ये है कि आप एक टेक क्रिएटर के पास आ रहे हो फूड का कवर करने के लिए, मैं कर भी बिल्कुल। दूंगा ना, तो मेरी ऑडियंस पहली बात मुझे लान तान करेगी, दूसरा ये आप मुझे लान तान करोगे कि इससे हमें कोई रिजल्ट ही नहीं मिला, बिकॉज मेरे साथ फूड कोलैबोरेशन करके आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, हम सब एक साथ करके मिलेगा। तो ये चीजें मतलब ज़हन में रखने की जरूरत होती है ब्रांड को। नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग इंसाइट्स, आई थिंक ऑन पॉइंट है ये सारी बातें। जस्ट अ रिमाइंडर फॉर द ऑडियंस, हम वी विल बी ट्विकिंग क्वेश्चन एंड, तो आपके माइंड में अगर कोई भी सवाल आ रहा है, ड्रॉप देम, प्लीज ड्रॉप देम इन द चैट। हम सेशन के एंड में विल एलोकेट सम टाइम फॉर क्वेश्चंस। मूविंग ऑन एंड शिफ्टिंग गियर्स अगेन, सो हमने ब्रांडिंग, ऑथेंटिसिटी और इसकी कंटेंट की बात कर दी। अब थोड़ी टेक्निकलिटीज में आते हैं। आरओआई किस तरह मेजर करते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैंपेन्स का, क्या मेट्रिक्स आप देख रहे होते हैं, व्हाट मेक्स मतलब वायरल हो या ना हो, लेकिन व्हाट इज अ सक्सेस क्राइटेरिया जो ब्रांड्स आपके पास आते हैं, व्हाट डू दे हैव इन माइंड फॉर दैट? Okay, so I would say कि actually this is a very brand specific question because usually this is where the agency or the brand would give you a better answer as compared to an influencer, but I can still give you my take on how it works. जिससे हमने restaurants में देखा है, it varies as I said, it varies from a business to business. Everything is subjective in here, this case. अब रेस्टोरेंट इज यूजली सेइंग कि यार ठीक है, एक इन्फ्लुएंसर आया, उनको मैटर नहीं करता कि उनको वो अवेयरनेस कभी वो कि एक चीज है अवेयरनेस, आप ये को ठीक है यार कि अवेयरनेस हुई, ठीक है, लोगों को पता चल गया यार कि एग्जिस्ट करता है। बट इन द केस ऑफ रेस्टोरेंट, आई नो फॉर अ फैक्ट एंड आई हैव डन सो मेनी इन द पास्ट, दे आर प्योरली लुकिंग एट कि हमें कितना कस्टमर का इंक्रीज इस बंदे के आने के बाद होता है। बिल्कुल। राइट, बिल्कुल। प्योरली, मतलब आई थिंक देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैंने जितने जितने मैंने रेस्टोरेंट पर जितने काम किए उतना मैंने ये देखा है। बट कुछ केसेस में देखें, आई वुड से कि देयर वुड बी प्लेसेस वेयर who would say कि यार, you know what, we are more interested in just getting our word out there. We're just interested in, raising awareness कि यार there is such a thing that exists in Islamabad or in फलाना बिल्कुल। फलाना जगह। मैं और so as you will realize कि the ROI is subjective in this case because एक तरफ purely awareness है और एक तरफ purely sales है। तो बिल्कुल। I would say कि जो मैंने पर्सनली देखा है वो देखा है, obviously FMCGs they don't care कि यार हमको, they're not interested in sales at all। मैंने जो पर्सनली देखा है, they're like okay, make us a good video, we hope that it gets good views, ठीक है। एंड बट देन अगेन मैंने बहुत ज्यादा ये नोट किया है कि एफएमसीजीज जस्ट वांट टू अटैच देयर नेम विद योर नेम। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं बता रहा हूँ, बहुत से केसेस में कुछ लोगों की हाइप, वो हाइप इस तरह की है कि अगर जब तक आपने आपने अपना नाम उसके साथ उससे मत जोड़ना है बिकॉज यू वांट टू बी ऑन दैट हाइप ट्रेन, राइट। In other cases, obviously, there are times we've seen कि there are some companies who are दराज जब तक उस पिछली मैनेजमेंट के अंडर था, दे वर वेरी स्मार्ट बिकॉज दे उन्होंने आपको इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम्स दिए हुए थे। व्हाट डू यू कॉल इट तला, Affiliate. affiliate programs, thank you. बिल्कुल। So Raj had his own affiliate program as well, right? So then we realized कि okay, you know what, these guys were way smarter because they realized कि यार हम अपना करेंगे, they would give you a link to put up in the story and then they would see कि यार sales कितनी हो रही है साथ साथ। So as I said, it varies from brand to brand, but then again, it totally depends कि brand क्या चाहता है। Does it want an awareness campaign or does it purely want a sales campaign? उसके accordingly, you basically see कि यार की क्या result है। नहीं, इंटरेस्टिंग। तलहा भाई आपसे भी आएंगे। सो हमने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है वो बात काफी रेजोनेट करती है कि ब्रांड्स जो है ना, वो या तो अवेयरनेस होती है या फिर सेल्स होती है। यूजुअली सेल्स के केस में ये होता है, एक प्रोमो कोड बना दिया जो आप अपने कंटेंट में पुश कर रहे हैं, और फिर यूजेज, उस प्रोमो कोड की यूजेज से आप ट्रैक कर रहे हैं कि मुझे इस कैंपेन के बाद 500 ऑर्डर यहाँ से आए, 600 ऑर्डर आए, इतने की सेल हुई, एक्सेट्रा। सो व्हाट डू यू थिंक फॉर अ रेस्टोरेंट, अगर बात करें, सो अर्ली स्टेज में ठीक है, आपको बैलेंस करना है, अवेयरनेस भी करनी है, सेल्स भी लानी है, लेट स्टेज थोड़ी हो गया है तो सेल्स पे ज्यादा फोकस करना है, रिपीट कस्टमर्स। हाउ शुड अ रेस्टोरेंट गो अबाउट इट? किस तरह एलोकेट करे बिटवीन अवेयरनेस एंड सेल्स? व्हाट डू यू थिंक आर द बेस्ट मिक्स या बेस्ट प्रोपोर्शन?
अच्छा, जहाँ तक बात है हाउ शुड रेस्टोरेंट रीच अप्रोच दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने खाली 2 हफ्ते पहले शुरू किया है, तो आई कैनॉट Yes. से आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस, बट आई कैन से इसके जो हमने अभी तक एक्सपीरियंस किया है एज क्रिएटर्स, और मैं और हमजा भाई वी आर वेरी ऑब्जर्वेंट, हम लोग जना, हमें जो चीज़ नहीं शुरू भी नहीं की होती ना, हम उसके बारे में डिस्कस जरूर कर रहे होते हैं, बल्कि हमारे अब्बा अक्सर तंग होते हैं कि तुम दोनों जब बैठते हो तो कंटेंट डिस्कस करते रहते हो या स्ट्रेटेजी डिस्कस करते रहते हो। अच्छा, रेस्टोरेंट का जो है मुझे समझ आया ना, खास तौर पे इट डिपेंड्स अपॉन योर गोल। अब जैसे कि मैं आपको Yeah, बताता हूँ कि इवन दो वी हैव सच अ बिग ऑडियंसेस, वी बोथ हैव ऑडियंसेस, लेकिन हम लोग फिर भी पहले दिन से एड्स को टेस्ट जरूर कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि जी ऑर्गेनिक अगर हमारा चल रहा है तो हम एड्स को ना टेस्ट करें। और उसमें अच्छा, यही है कि अभी जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो इट्स प्योरली अवेयरनेस कैंपेन। ओके, हमने एड्स शुरू किए हैं, अवेयरनेस कैंपेन है, हम हाँ, कोशिश ही नहीं कर रहे। इवन दो एक रेस्टोरेंट का खास तौर पे किसी भी ब्रांड का वैसे अल्टीमेट गोल होता है सेल्स, बिल्कुल, लेकिन आप देर इज अ रूल ऑफ 7 इन मार्केटिंग कि कोई भी बंदा आपसे तब कोई चीज खरीदता है जब एटलीस्ट 7 इंटरेक्शंस उसके आपके साथ हुए होते अच्छा, हैं। एक दफा उसने आपका बिलबोर्ड देख लिया, दूसरी दफा आपका ऐड देख लिया, तीसरी दफा उसने किसी दोस्त से सुन लिया, चौथी दफा इंस्टाग्राम ऐड देख लिया। रूल ऑफ 7 ये है कि आप वो 7 इंटरेक्शंस के बाद ना उसको होता है कि यार ये चीज ट्राई कर लेनी चाहिए। और अगर आप पहले दिन से ही आप लोगों को कन्वर्ट करने में लगे हुए हो ना, तो आई डोंट थिंक दैट या इज अ गुड आइडिया। आप एटलीस्ट जैसे कि भी हमने अवेयरनेस कैंपेन चलाई हुई है, वी आर ऑपरेटिंग जस्ट इन बैरियर टाउन रावलपिंडी, सिर्फ बिल्कुल, इधर के लोगों को टारगेट किया हुआ हमने, और अवेयरनेस कैंपेन चल रही है। और बिल्कुल, उसमें वही बात है कि वो फिर थोड़ा ज्यादा डिटेल में चला जाएगा, रीटारगेटिंग एड्स वगैरह होते हैं, हाँ, फिर पता चल गया कि आपकी एक बेस ऑडियंस क्या नजर आ रही है, पोटेंशियल क्लाइंट क्या है, फिर आप रीटारगेटिंग एड्स चला सकते हो। बल्कि आप उन्हीं ऑडियंस के मुताबिक आप देख सकते हो कि आपको कंटेंट किस तरह का बनाना है, थोड़ा लोकलाइज कंटेंट हो जाता है, उस एरिया स्पेसिफिक कंटेंट हो जाता है। तो आई गेस फिलहाल मतलब अभी तक 2 हफ्ते के लास्ट से मैं यही बता सकता हूँ। नहीं नहीं, वेरी वैलिड इंसाइट्स। आपने रूल ऑफ 7 किया है तो ये सुन के मुझे भी याद आ रहा है, मैंने जब टीमू का 7वीं दफा ऐड देखा होगा फिर ही टीमू पे ऑर्डर प्लेस किया होगा, तो ये टीमू भी बार बार कर रहे हैं, वो तो एड्स के थ्रू 7 इंटरेक्शन पूरे कर रहे हैं कि उतने नहीं ज्यादा एड्स नहीं, दिखा रहे हैं आपको, वेरी, गुरेला मार्केटिंग में आ जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। सो अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा, क्या कहते हैं, चैनल्स और ट्रेंड्स, सही है। सो अब रील्स का आपने थोड़ा बहुत डिस्कस किया, टिकटॉक का डिस्कस किया। प्लेटफॉर्म्स वाइज बताएं, वेयर डू वी स्टैंड, पाकिस्तान में कौन से प्लेटफॉर्म्स किस चीज़ के लिए अच्छे हैं? इंस्टाग्राम का भी यूज़ करना चाहिए, टिकटॉक का भी यूज़ करना चाहिए, फेसबुक का भी यूज़ करनी चाहिए, और कोई चैनल्स हैं? सो मैं अभी करंटली जिस तरह देखता आ रहा हूँ, हम लोग आई मेट मेटा की टीम अभी ऑलमोस्ट 2 वीक्स बैक, एंड आई वाज लाइक कि भाई तुम लोगों ने कुछ तुम लोगों ने सही, तुम्हारा काम चल रहा है, मतलब तुम लोगों को प्रमोशन, सिंगापुर से 2 लोग आए हुए थे। Okay, so if you look at, advertising, the kind of brands that usually work with you, 99% is Instagram. 99%, अच्छा, right? Because I mean that's a huge number. I would say that there is nothing comes even close to Instagram. ठीक है, तो ओके, जितने भी लोग, मतलब all the restaurateurs, I feel like currently जो वो focus कर रहे हैं, या in general, like the brands which are focusing on, जो मैं currently देख रहा हूँ, वो ये है कि people want to make sure that they're going big on Instagram. But I do believe that TikTok is the only threat to Instagram's current woe, because at the end of the day you see so many people purely being on TikTok, especially now. So here's an interesting part. You would usually used to think ना, TikTok तो बड़ा हकीर बेचारा शुरू में समझा जाता था, अभी भी काफी हद तक हकीर समझा जाता है, लेकिन हमने ये देखा कि you see people from LGS, LSC, IBA, now these people, जो Gen Z kids जो कि पैदा ही मोबाइल फोन्स के साथ हुए थे, या now they are very, like, they're very pro TikTok, by the way. They're very pro TikTok. 100%। So TikTok has मुझे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है TikTok का, when it comes to मेरा पर्सनल ये व्यू है, मैंने देखा है कि मुझे ज्यादा I have enjoyed TikTok's feed much more now, because मेरे या TikTok पे इंटरनेशनल कंटेंट भी बहुत ज्यादा नजर आता रहता है जो मैं देखना चाहता हूँ। बट हाँ, करंटली इफ यू लुकिंग एट इट, तो फेसबुक, आई मीन ठीक है ना, फेसबुक एक वो बेचारा भूला हुआ मिडिल चाइल्ड है जो, आई मीन, एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन वो, आई मीन, करंट ट्रेंड्स में मुझे लगता है कि वो उस तरह कुछ लोग उस पर ऑब्वियसली फायदा उठा सकते हैं, कंसिडरिंग इफ यू टारगेटिंग पीपल अबव 30-35 अबव, राइट? अगर राइट, आपने पेरेंट्स को टारगेट करना है एंड ऑल, इट द मार्केट इज स्टिल ऑब्वियसली देयर, बट नाउ यू लुक एट
the speed with which Instagram is, going to, and obviously हर किस्म का बंदा, हर तरफ से बंदा उसमें आ रहा है. So I would say कि you can put your eggs, in one basket. Technically, like almost 95% of, Instagram. YouTube is there, is a confused child. YouTube बेचारे को कुछ नहीं पता कि मैंने क्या करना है जिंदगी के साथ. वो अपनी उसमें लगा हुआ है, ऐसे कोशिश कर रहा है कि वापस आए, लेकिन कोई उसे लिफ्ट नहीं करा रहा. So Facebook and YouTube are, there, but they're just there. Instagram and TikTok are obviously the main leaders. And I don't know if there's any other platform. LinkedIn. LinkedIn is where people are lacking, and जहाँ पे हमने जरा गेम चुकी हुई है. I would honestly say कि it's a gold mine. I swear to God when I tell you this, it is a gold mine. We've been growing. I mean, ये मैंने अभी पब्लिकली वैसे बताया, लिंक्डइन मैंने बताया कि बट नाउ वी आर करंटली नंबर 1 इन पाकिस्तान. मैंने वो अभी रिसेंटली रैंकिंग्स निकाली थी. हाँ, तो वे सो बट दें वो कहने से, वो करने से ये है कि देखें, आप उस जगह पे फोकस स्टार्ट कर दें जहां आपको लगता है कि यार पोटेंशियल है. एंड वी नो, अभी मैंने रिसेंटली चेक किया तो I saw this post where the guy goes कि I have started this like for गोरा था कि like I've started a LinkedIn influencer marketing agency because they know कि 2025 में ये जगह फटने वाली है. अच्छा. और हमें ऑलरेडी लिंक्डइन पे पेड पार्टनरशिप मिलना शुरू हो गई जो कि हार्डली अभी तक किसी को मिली है. सो द फैक्ट इज कि इट जस्ट शोज अ ट्रेंड कि मे बी व्हाट, ठीक है, हम लोग हमेशा इसको B2B समझते आए हैं, अ बिग चंक ऑफ B2B सेल्स एंड एवरीथिंग, बट इट इज नाउ बिकमिंग B2C बिकॉज अ लॉट ऑफ देयर आर 1 बिलियन यूजर्स ऑन लिंक्डइन. तो इफ यू कुड यूज दैट, ठीक है, चंक ऑफ पीपल जो जिनको टारगेट करना रिलेटिव ज्यादा आसान है, तो आई वुड से कि लाइक टेक योर शॉट ऑन लिंक्डइन एज वेल इफ यू वांट टू. नहीं नहीं, very interesting observation here. I also agree with that. क्या कहते हैं तला भाई, आपसे हम जानेंगे कि इन चैनल्स पे कौन कौन सा फॉर्मेट किस किस चैनल के लिए बेस्ट है, और वही एक जनरल आउटलुक के where would you prioritize given your history of being trendsetters and leading. So आप अगले 2-3 साल what type of content, what format of content on what channel, what would be the right mix for a brand, कि किस चैनल पे किस अच्छा, कैसे. जहाँ तक बात आ जाती है ना, एक और भी है उसमें, ये है कि एज अ कंपनी आपका गोल क्या है एंड whom यू आर टारगेटिंग. अगर तो आप, वही बात हमजा भाई ने बोला कि अगर आप जेनजीज को टारगेट कर रहे हो तो टिकटॉक इज योर बेस्ट बेट. और या टिकटॉक, वही बात है, कंट्री टू कंट्री भी डिफर करता है. हम खाली पाकिस्तान के बारे में भी बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के ऑब्वियसली मिडल ईस्टर्न क्लाइंट्स भी हैं. तो मिडल ईस्ट वाली साइड पर, दुबई वाली, ये सारा टिकटॉक इज ओनिंग इंस्टाग्राम. वहाँ पर टिकटॉक ही चलता है, बिकॉज वही बात है ना, आपकी जो ऑडियंस है, आपके जो यूजर है, वो किस तरह का कंटेंट आपको बना के दे रहा है. ठीक, हमारे यहाँ पर आपको पता है किस तरह का कंटेंट टिकटॉक पर यूजली पोस्ट होता है. और बाकी सारी कंट्रीज में, यूएस में खास तौर पर और दुबई वगैरह में, वहाँ पर हर ब्रांड जो है ना वो टिकटॉक के ऊपर फोकस कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर लोग सिखा रहे हैं, पूरी पूरी एजेंसीज बना के बैठे हुए हैं. तो प्रमोशन भी उस लिहाज से है. तो जहाँ तक कंटेंट की बात है, सही बात बताऊं, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपने अगर ग्रो करना है ना, वी हैव बीन ग्रोइंग ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स बाय जस्ट पोस्टिंग वीडियो कंटेंट. और हम बनाते भी, हमजा में भी ये करते, मैं भी ये करता हूँ. हम एक इंस्टाग्राम के लिए कंटेंट बनाते हैं, वी रीपर्पज इट ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, Yeah. इवन समटाइम्स ऑन लिंक्डइन, अगर वो रिलेटेबल चीज़ है, स्टोरी उसकी Yeah. अच्छी बन रही है. तो वीडियो कंटेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा डीपर कनेक्शन चाहते हो ना अपनी ऑडियंस के या साथ, तो इमेज और कैरोसेल्स आर ऑल्सो वेरी गुड. ओके. आप Mm. अब टिकटॉक ने भी अलाउ कर दी है, वो इंस्टाग्राम के या ऊपर ऑलरेडी हैं. उससे आपकी ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन आपकी जो करंट ऑडियंस है ना, वो बहुत अच्छा आपके साथ कनेक्शन बनता है. और मेकिंग कनेक्शंस इज, आई वुड से, मोर इम्पोर्टेंट देन ग्रोइंग. बिकॉज देर कुड बी अ क्रिएटर आउट देयर जिसके 100,000 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं. और या वो बल्कि बीच में एक इस तरह स्टोरी भी आई थी, एक बंदी है जिसके 3.5 मिलियन टिकटॉक पे फॉलोअर्स थे, एंड शी wasn't able to sell just 16 shirts. तो Yeah. कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर 1,000 फॉलोवर है और उस 1,000 फॉलोवर में से 500 जो हैं वो आपसे खरीदने के लिए तैयार हैं, तो जो उसका ROI है, या वो या रेशो जो है वो इतनी ज़्यादा है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते. तो ये लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वीडियो कंटेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. लेकिन अगर आपने अपनी ऑडियंस के साथ और अच्छा कनेक्शन बनाना है, तो इमेजेस और कैरोसेल्स भी अच्छे चलते हैं. नहीं नहीं, दिस इज अ मतलब गोल्ड माइन. आपने जो बात बताई है कि डिस्कवरी के लिए वीडियो इस्तेमाल करो और डीपर कनेक्शन बिल्ड करने के लिए carousels, पिक्चर्स या टेक्स्ट बैक गिव योर स्टोरीज ऑडियंस. ऑल्सो. या एंड रील्स आल्सो. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. सही है. सो वी गो टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ दिस, क्या कहते हैं. सो
एक तो हो गया आपकी मतलब अवेयरनेस बढ़ रही है, क्या कहते हैं, सेल्स बढ़ रही हैं, एक्सेट्रा। व्हाट आर सम अदर आउट ऑफ द बॉक्स यूज केसेस, जैसे फॉर एग्जांपल क्राइसिस मैनेजमेंट एक्सेट्रा, कहाँ कहाँ और आप इन्फ्लुएंसर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, या व्हाट कैन बी अनदर गुड यूज केस जो कि काउंटर इंटुइटिव है, राइट? या ब्रांड चेंज कर रहे हैं, पिवट कर रहे हैं, एक्सेट्रा, राइट? या नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं। सो द नॉर्मल यूज केसेस दैट यू वर्क विद, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में वो ज्यादा मेन स्ट्रीम हो रहे होंगे, कि एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इवॉल्व कर रही होगी? सो मैंने जिस तरह देखा है अभी तक के लिए वो ये है कि देखें, अगर इन्फ्लुएंसर्स इतने पावरफुल होते तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कोक और पेप्सी अपना धंधा इंस्टाग्राम पे बंद ना करके बैठे होते हैं। या ठीक है, देखिए, लाइक लाइक आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर। या आप कुछ केसेस में जब आपसे क्राइसिस, ठीक है, लाइक लुक एट द एग्जांपल दैट व्हेन वी सॉ दिस बॉयकॉट, KFC hasn't Coca-Cola hasn't posted a picture since the boycott. ओके। ठीक है, हाँ, now if you go and check, ठीक है, you'll find कि there's nothing over there. तो एंड जो कुछ लोग कर रहे हैं वो अपने कमेंट्स ऑफ करके कर रहे हैं, सो द फैक्ट इज, ठीक है, यू कैन रिलाई ऑन इन्फ्लुएंसर एक हद तक, बट द फैक्ट इज कि अब देखें, अगर द इन्फ्लुएंसर और एनी सेलिब्रिटी और एनी वन वाज दिस वो, तो द फैक्ट इज कि आप अभी देख रहे होते यार कि लोग आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम वो चल रही होती कोलैबोरेशन। अब ऑनेस्टली मतलब दिस एंटायर सेक्शन हैज बीन वाइप्ड आउट। ठीक या है, एंड 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 सो आई वुड से कि इन्फ्लुएंसर्स एक हद तक आपकी, देखें, आपने अगर इफ यू मैस अप तो एक हद तक चलो ठीक है, आप मे बी उनके थ्रू आप कर लें और ये भी इन्फ्लुएंसर आपके पास उस टाइम आएगा जो बड़ा नीडी होगा। मैं आपको बताऊं कि आई डोंट थिंक अगर कोई कंपनी किसी क्राइसिस में है तो मैं कहूंगा हाँ जी आप मुझे जरा 3 गुना पैसे दें तो मैं आपकी इज्जत बचा लेता हूँ। नहीं, ऐसे सही। नहीं हो सकता। ठीक है, लाइक लेट मी टेक योर बर्डन। We saw this example with the government as well. Recently, वो या बेचारे या they got roasted pretty bad. But the fact is कि अवाम का जो sentiment है, और अवाम is bigger than anything else. You need to understand this. If you have messed up, here's the thing. If you have messed up, admit कि we have messed up. ठीक है, बिल्कुल। accountability is everything. If you say कि यार ठीक है, and now if you want to dodge this, I know for a fact people know, don't forget now. Social media पे आपने if you messed up, तो द फैक्ट इज कि लोग भूलते कभी भी नहीं है, आप जितना चाहे कर लें और मैं पर्सनली चीज को देखता हूँ कि और आप अगर इसको इस तरफ लेके जाना चाहते हैं तो आई वुड से हाँ, गेट अ गुड PR कैंपेन एंड एवरीथिंग लाइक स्टिल देयर, बट आई वुड से कि इन्फ्लुएंसर्स उस लेवल पे नहीं है कि आप कहें नहीं जी यार कि इन्फ्लुएंसर आपको किसी क्राइसिस मैनेजमेंट में या यहाँ पे आपको बचा लेगा। सही हो गया, इंटरेस्टिंग। आपकी क्या राय है? सो वन थिंग जो मुझे कॉमन थीम लगी है ना, ये मासेस की वो, और वाई टिकटॉक हैज बीन सो पॉपुलर। सो आई वाज आल्सो स्टडीइंग कि टिकटॉक का जो एल्गोरिदम था दैट वाज बेस्ड ऑन, क्या कहते हैं, जो उनका फॉर यू सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, दैट्स बेस्ड ऑन कि कितने ज्यादा लोग एक ग्रिड के अंदर उससे एंगेज करते हैं, और जितनी ज्यादा उसका एंगेजमेंट या जितना वॉच टाइम होता है, फिर वो और ज्यादा ग्रिड्स को दिखाता है, और इस तरह वो कंटेंट जल्दी वायरल वायरल होता है। एज अपोज टू जैसे फेसबुक ने फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स वाला कॉन्सेप्ट होता था 5-10 साल पहले, कि हम्म। आपके फ्रेंड, आपने जो पोस्ट किया वो आपके फ्रेंड को नजर आया, उसने लाइक किया तो वो उसके फ्रेंड को नजर आया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? सो masses हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड टू गेट टू द masses, क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तला भाई, आप बताएं कि व्हाट शुड अ ब्रांड हैव इन माइंड, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह छोड़ दें, मतलब अगर हम्म। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करनी है, शुड इट बी अ वन ऑफ एक्सपेरिमेंट, या किसी प्लान के साथ आए, या क्वार्टर में एक दफा करें, साल में 2 दफा करें, वो हाउ शुड अ ब्रांड रियली, क्या कहते हैं, प्लान इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग? टू बी ऑनेस्ट, ये ज़्यादा बेहतर ब्रांड समझ सकता है कि उन्होंने किससे एलोकेट करना है अपना बजट। या लेकिन यस, अगर हम मार्केटिंग साइड से देखें तो मल्टीपल चैनल्स को टेस्ट करना ज़्यादा बेहतर होता है रादर देन रिलाइंग ऑन वन चैनल जो आपका अच्छा चल रहा है। अब बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर उनका बड़ा अच्छा रिजल्ट उनको मिलता है, लेकिन इफ़ यू आर द थिंग इज कि आप अगर फेसबुक जो है आज से 10 साल पहले क्रेजी किस्म का सस्ता था, हर बंदा पागलों की तरह पैसे लगा रहा था। अब जो है लोग डरते हैं फेसबुक के ऊपर पैसे लगाते हुए। कर तो रहे हैं पर सेम रिजल्ट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए आपकी मार्केटिंग के अंदर। आप इन्फ्लुएंसर्स को, आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को भी ऑन बोर्ड लेके आओ, आप मैक्रो को भी लेके आओ, आप बिल बोर्ड्स वगैरह उन चीज़ों को भी ट्राई करो।
क्यों, अगर आप मल्टीपल चैनल्स के ऊपर ट्राई कर रहे हो ना, और भी वाली बात आती है, फिर आपको एक पैटर्न नजर आना शुरू हो जाता है कि यार इस साइड के ऊपर ना रिजल्ट अच्छा मिल रहा है, देन यू डबल डाउन ऑन इट। मतलब हाँ, आई टेस्टिंग, वुड एक से छोटे ब्रांड की टेस्टिंग जरूरी है। आई वुड से बिल्कुल। कि देखें, आई वुड से कि देखें आप ना, मैं हमेशा की बात मैं करता हूँ कि यार देखें, यू डोंट हैव टू मास्टर एवरीथिंग एट वंस, ठीक है। लोगों को होगा यार कि हम सब जगह चलाएं, नहीं, आई थिंक आप एक प्लेटफॉर्म पकड़ें। और मैं हमेशा, हम लोग सिर्फ हम कंटेंट में भी ये बाय द वे सिखाते हैं, अगर आपने कंटेंट बेहतर करना है तो आप एक प्लेटफॉर्म को पकड़ो और उस पर बनाना शुरू करो और उस पर बार बार एक्सपेरिमेंट करो एंड ऑल। आप ये कहो कि ठीक है यार मैं, लेट्स से, हाँ, एंड बट कम अप विद अ प्लान, ठीक है, एंड स्पेंड सम मनी टू हेल्प यू इन प्लानिंग समथिंग, ठीक है, बिकॉज हमारे लोग बहुत कंफ्यूज है, आई एम सॉरी टू से, मैं सबके सामने यहाँ पे कह रहा हूँ। उसके रीजन ये है कि आपने अगर कोई चीज करनी है यार, तो आप अपनी रिसर्च तो करो। आपको अगर पता ही नहीं है, पास में मैं आपको एक सिंपल सी चीज है, आपने कोई कैंपेन करनी है और आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, सही है, आपको आपको हाँ बस मैं इन्फ्लुएंसर को दे देता हूँ, आप देखते हैं कि सेल बढ़ जाए या बिजनेस बढ़ जाए, आपको कुछ पता ही नहीं है, द फैक्ट इज दैट दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट, एंड यू विल बी डिसअपॉइंटेड एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज यू वुडंट नो कि वर यू एबल टू अचीव योर गोल और नॉट। सो आई वुड से कि डू योर ओन रिसर्च, ओके। plan accordingly, and once you've planned, you set very realistic expectations and goals कि ठीक है, but this is what we plan to achieve out of this, या and let's build on that. Start off small, don't go too big, ठीक है, start off small, go with 1 or 2 3 influencer के करके काम करना स्टार्ट किया और देखा कि क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर मैं एक रेस्टोरेंट हूँ तो मैं फूड ब्लॉगर से काम करता हूँ, कैसा रिस्पॉन्स आता है। अगर एक मैं मेगा इन्फ्लुएंसर के साथ काम करता हूँ तो क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर मैं माइक्रो के साथ काम करता हूँ तो क्या क्या रिस्पॉन्स आता है। एंड देन यू बेसिकली बिल्ड टुवर्ड्स योर वो कि ठीक है यार हम एक एक चीज करके देखो। तो आई थिंक देयर इज नो रॉकेट साइंस, इट्स जस्ट लाइक experimenting with different people. All right, so very insightful. I have a couple of questions, मतलब notes या remarks जो मैं end में wait करूँगा, like more likely for a क्या कहते हैं closing notes. अभी I think audience की तरफ से कोई 3-4 सवाल हैं, so let's get to them straight away. सबसे पहले उमे कुलसूम ने पूछा है, hello everyone, I have 2 questions for both. How would you define your audience? Not just the interest but age, location, personality, etc. और दूसरा पार्ट है, डू यू फील दैट रेस्टोरेंट्स वोंट रीच आउट टू यू थिंकिंग यू ऑलरेडी हैव योर ओन रेस्टोरेंट एंड नाउ यू वोंट बी जस्टिफाइड? No, so here's the thing. I'll answer the second part first. Again, now we have more relevance because now we are restaurateurs ourselves. ठीक है, ऑथेंटिसिटी। a good example authenticity, because now it's like okay, you know what, हम अपना चलाते हैं तो हम जानते हैं कि किस तरह चलना चाहिए, ठीक है। तो we have more on our plate, but yes, we have more credibility because of that. Um, and no, it doesn't affect our work. I believe I believe you have a good example in Adil Chaudhary, right? Who runs Janoon, obviously does, a lot of reviews here and there. एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं बताऊं, सारे लोग फॉलोअर्स के भूखे हैं, बस आपके फॉलोअर्स अगर सही हैं तो कोई आप टेंशन ही ना लें, आपको काम नहीं रुक सकता आपका। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, इफ आई वर टू डिफाइन माय ऑडियंस, आई वुड से कि मैंने एक थोड़ा सा एक एक शिफ्ट लिया है टुवर्ड्स द काइंड ऑफ पीपल आई वांटेड इन माय चैनल, बिकॉज़ अगेन you started off with, and I know for a fact people still know Hamza Bhatti as the food blogger, but Hamza Bhatti का interest with food blogging बहुत टाइम पहले खत्म हो गया था। I mean it's there, yes, I would probably go and do it once again, बट मैं चाहता था कि मेरी थोड़ी सी जेनेरिक ऑडियंस हो, क्योंकि शुरू में देखें, और ये चीज सलाह ने सही, मैंने मुझे याद पड़ता, सलाह नहीं मुझे बताई थी कि शुरू में यू नीश डाउन, आपने एक नीश पकड़नी है और आपने उस पर बिल्ड करना है, ठीक है। अगर मेरी फूड है तो ठीक है, मैं जब तक 2 3 4 लाख फॉलोअर्स पे नहीं पहुंचूंगा, मैं कहूंगा यार हाँ हमजा भाई फूड करते रहो बिकॉज दिस इज वेयर पीपल लाइक यू फॉर। नाइस। बट एज यू गो अलोंग आपको समझ आएगा कि यू नीड टू नीश अप, कंसिडरिंग द फैक्ट अब आपको सिर्फ फूड में मजा नहीं आ रहा, आपके साथ टोयोटा, hyundai, सोनी सारे काम करना चाहते हैं, अब आप सिर्फ फूड के ब्लॉगर तो नहीं रह सकते। तो अब आप सही। फिर जाके अपने होराइजन एक्सपैंड करें। So I would say that my audiences now obviously was primarily initially it was a lot of food, but now I've gone you can say कि मैं थोड़ा generic मैंने इसलिए कर दिया है, lifestyle creator बन चुका हूँ, considering कि now I technically I could cover from an airline to a car to a restaurant. So I या think it just becomes easier that way. Yeah. नहीं, वेरी रेलेवेंट। सही हो गया। अगला एक सवाल है, एक दो इंटरेस्टिंग सवाल हैं। तला भाई आपसे पूछते हैं, हाउ डू यू सी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इवॉल्विंग इन द नेक्स्ट 5 years? सही है, क्या इसी तरह फूड रिव्यू चलते रहेंगे या पाकिस्तान में भी ASMR फूड वीडियोस आ जाएंगी? क्या होएगा, क्या कहते हैं, अगले 4-5 साल? जहाँ तक बात है ना कंटेंट की, तो कंटेंट टाइप्स तो बाकी कंट्रीज में जो भी हो रहा है वो फौरन आता जा रहा है। सही। ASMR टाइप वीडियोस हो गई,
या वो जो बहुत सारे लोग बहुत सारा खाना मुकबैंग्स खाने हो बैठ के गए, खा रहे हैं, हाँ। वो हाँ चल वो हाँ होगा। लेकिन द थिंग इज कि आपने ये चीज देखनी है कि कौन सी चीज सस्टेनेबल है। अब जैसे कि वो जो बहुत सारा खाना खाने वाले लोग थे, वो सारे रिवील होना शुरू हो रहे हैं कि वो खाते हैं एंड देन दे स्पिट इट आउट, और वो या इट्स डिस्कस्टिंग टू बी ऑनेस्ट, पर वो फॉर्मेट लोगों को समझ आना शुरू हो गए हैं, और वो एक हद तक ही चलेंगे। और खास तौर पे ये भी है कि आप ये भी देखते हो कि आप कहाँ पर ये कर रहे हो, मे बी किसी बाहर True. कंट्री में करो तो पीपल स्टिल हेट ऑन देम, बट Yeah, इफ यू डू इट हेयर इन पाकिस्तान और आप एक चीज़ को ज़ाया कर रहे हो, तो वो एक इस्लामिक भी आ जाता है exactly. इसके अंदर एंगल, कि चीज़ को ज़ाया कर रहे हो, और वजह से लोग तो छोड़ते नहीं हैं। वही हमजा भाई वाली बात कि आपने देखना है लोगों के, लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या चीज़ पसंद आ रही है। अगर आप उनके अगेंस्ट जाओगे तो लोग नहीं छोड़ेंगे And आपको। it could easily go, take a 180-degree turn where हम रील्स की अभी बात कर रहे हैं और मे बी आप 6 महीने में देखें हम फुल फ्लेज 10 मिनट वीडियोस के ऊपर आए होंगे, because people like हम्म। वी आर डन विद हाँ, स्क्रॉलिंग एट पीपल ऑल से टाइम। कि यार लॉन्गर वीडियोस बनाओ, और पीपल, द थिंग इज कि एल्गोरिदम वो से भी, एल्गोरिदम से तो हम उसके वो हैं, हम एल्गोरिदम, उसके स्लेव हैं, वो वी आर स्लेव टू द एडम एल्गोरिदम। मिजूरी जो है इंस्टाग्राम का जो सीईओ Yeah, है, वो कहता है कि हम वीडियोस को पुश नहीं कर रहे हैं, लोग पुश कर रहे हैं। लोग very right. डिमांड करते हैं हमने Yeah. वीडियो कंटेंट देखना है, इवन दो या कैरोसेल्स और इमेजेस अवेलेबल हैं, लेकिन दूसरा कंटेंट रील ज्यादा चल रहे, बिकॉज एल्गोरिदम इज बेसिकली व्हाट पीपल वांट। Exactly, exactly. नहीं, great observation. अच्छा, अगला एक सवाल है इंटरेस्टिंग. हाउ डू यू हैंडल नेगेटिव फीडबैक और क्रिटिसिज्म ऑन ये सोशल मेरा मीडिया? फेवरेट क्वेश्चन है, मैं हाथ खड़ा फेवरेट। कर रहा हूँ। अच्छा दोनों ओके। बारी बारी. अच्छा देखें, मैं बताऊं क्या, एंड दिस इज फॉर एवरीबॉडी हु इज लिस्टिंग। देखें, वन फाइन डे, वन फाइन मॉर्निंग, एक रैंडम बंदा इन डेरी हसनाबाद वो उठता है, वो आपकी रील देखता है और उसका मूड खराब है क्योंकि उसकी बीवी से लड़ाई हुई हुई है। ठीक है, सो आप बेबावे, देखें आप, यू कुड बी, मतलब यू कुड बी द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, यू कुड बी द बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड, अगर किसी ने आप पे हेट करना है तो उसने आप पे हेट करना है, तो आप नेगेटिविटी को भूल जाए। आप कहें आप यहां से सुने और यहां से निकालें, ठीक है, Sir. नेगेटिव कमेंट्स। बट आई read this somewhere and it changed my life, I'll be very honest, because now I've been in this field for, as I said, like 7-8 years now. अगर आपको कोई बंदा क्रिटिसाइज करता है तो Mhm. वो उसके इक्वल है कि कोई बंदा आपकी तारीफ करता है। आपने ना Right. तारीफ को इतनी सीरियस लेना है, ना ही आपने नेगेटिव चीज को इतना सीरियस लेना है। अगर आप तारीफ को लेंगे ना सीरियस, कहेंगे यार मतलब मैं तो बड़ा भाई मशहूर हूँ, मैं लोग बड़ी मेरी तारीफें करते हैं ना, लेकिन द फैक्ट इज फिर जब वो नेगेटिव कमेंट करेगा ना, तो तब हाँ. आप दिल पे लेके बैठ जाएंगे और आप कहेंगे यार मैं अब अपना वो गोली मार लूं। ठीक है, डोंट Yeah. गो दैट, डोंट गो देयर। टेक द पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक इन एन इक्वल वो, ताकि आपको फील बहुत ज्यादा ना हो। अगर आप बहुत ज्यादा फील करना शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर होगा ये कि यार आप बिजनेस में तो आपका क्या, आप बिजनेस आप बिल्कुल. चला ही ना लें, अगर आप लोगों के कमेंट्स करें। देखें, अब हमें पता है भट्टी बिरयानी स्टार्ट हुई है, अगर उस पर 95% पॉजिटिव कमेंट्स है तो 5% नेगेटिव होंगे। देखिए बात है कि आपके, और फॉर रेस्टोरेंट्स लाइक दिस इज, एनीबडी हु डज सोशल मीडिया, यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि देखें आपने एट द एंड ऑफ द डे जब भी ये चीज करनी है, तो आपके हेटर्स और बिलीवर्स दोनों होंगे। आप कोई चीज करने जाएंगे, मे बी नो आपके पेरेंट्स आर नॉट वो कि आप कोई चीज करने जाते हैं, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो क्या आप उनको कहेंगे नहीं भाई मैं तुम्हें कैंसिल कर, नेगेटिव कर, तुम्हें ब्लॉक कर, तो नहीं। सो दैट्स फाइन, लेट पीपल से वट एवर दे वांट टू से, यू डू यू, एंड यू मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अ प्लान। यू लाइक it, ठीक है, मैं देखूंगा, मैं देखूंगा, ठीक है मैं देख लूंगा, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक दोस कमेंट्स टू माय हार्ट। So I think, and that is, if you don't do that, I know for a fact there are a lot of creators who were much more talented, 10 times more talented than we were, but they weren't able to sustain this work because negative comments got to them. ओके, ओके. नहीं. अगर but- अपनी एंगल से मैं बात करूँ ना, तो हाउ टू डील विद देम ना, एक तो ये है ना कि आपने इनकी परवाह ही नहीं करनी है। लोग क्या करते हैं, और दिस इज समथिंग आई एम श्योर कि हर कंटेंट क्रिएटर जब शुरू करता है, तो जब उसको नेगेटिव, पहला नेगेटिव कमेंट आता है ना, तो वो उसको डिलीट करता है। फिर एक और Hmm. आता है कुछ अरसे बाद, तो वो उसको बंदे को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। द थिंग इज कि आप कौन सी चीजें जो काम नहीं करेंगी आपके लिए, बिकॉज इतने ज्यादा आपको नेगेटिव कमेंट्स आएंगे कि ये सस्टेनेबल ही नहीं है कि आप डिलीट Delete करो, करते रहो। उसको रिस्ट्रिक्ट Yeah. करो, उसको हाइड करो, उसको खुद रिप्लाई करो। ये सस्टेनेबल Yeah. ही नहीं है। मतलब नहीं. मैंने ट्राई कर किया हुआ है ये, आपने सिर्फ क्या, द ओनली थिंग विच यू कैन डू इज इग्नोर। Nice. क्योंकि Yeah. आप वही हमजा मैंने जो बात की है कि अच्छे और बुरे कमेंट्स दोनों को आपने ज्यादा भाव नहीं देना, क्योंकि वरना पता है क्या होगा,
थ्रू आउट द डे और थ्रू आउट द वीक आपका मूड ऊपर नीचे होता रहेगा, आप पागल हो जाओगे कि यार एक टाइम पे एक बंदा कह रहा है कि यार दिस इज द बेस्ट थिंग एवर, और दूसरा साथ ही मुझे गालियां दे रहा है। और एक और चीज, जो चीज लोग समझते नहीं है कि उनको, लोगों को लगता है कि अगर हम किसी नोबल किस्म की फील्ड के अंदर हैं या हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें कोई हेट नहीं। ओहो, वहां पर तो सबसे ज्यादा ज्यादा हिट आपको होता वहीं है। पे मिलेगा। अगर आप आपको ना मैं भी बताऊं, आपके मैं ट्यूटोरियल्स बनाता था, आप मतलब मैं सोचा करता था कि हाउ कैन समवन हेट ऑन समवन जो एक चीज एजुकेशनल। सिखा रहा है, मतलब एक उस्ताद है। मैं ट्यूटोरियल्स बना रहा होता था, और उसके ऊपर एक तो है, या एक तो ना हेट कमेंट्स, गालियां, स्ट्रेट फॉरवर्ड गालियां पड़ती हैं आपको, ठीक है। तो इन चीजों को आपने सर पे सवार नहीं करना है। यू डू यू, अपना कंटेंट बनाओ, कंटेंट के ऊपर फोकस रखो। कमेंट्स के ऊपर बिल्कुल परवाह नहीं करनी है, डीएम्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे। बट्टी बिरयानी के ऊपर वही बात है, हमने इतने टाइम में इतनी ज्यादा थिक स्किन डेवलप कर ली है ओ या कि मुझे या वो रिव्यूज में पढ़ रहा होता हूँ ना, मैं हर हर रोज दिन के एंड में गूगल रिव्यूज जो भट्टी बिरयानी पे पढ़ रहा होता हूँ, तो मैं लिटरली 5 स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार, 1 स्टार, लिटरली एक बंदे का कमेंट आया हुआ था अभी सबके सामने बताना चाहता हूँ कि दिस इज द वर्स्ट बिरयानी एवर, हमजा एंड तलहा शुड स्टॉप मेकिंग कंटेंट। कि अपना कैरियर ही खत्म कर दे, इतनी बुरी। ओह गॉड। तो और ये मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, क्या पता कोई इसकी रिकॉर्डिंग करके पोस्ट कर दे मेरे सर पे से सही बात बताऊं, हाँ, that's अगर true, कोई इसकी that's true, रिकॉर्डिंग भी करके पोस्ट कर दे, that's बस true. ये लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपने लोगों की परवाह नहीं करनी है। आप अगर इसी टेंशन में पड़े रहो ना, वही बात है, 95% हमारे माशाल्लाह पॉजिटिव रिव्यूज है, 5% नेगेटिव आते हैं, हम उन 5% के लिए 95% को फेंक दें, बिल्कुल। उनको फीडबैक Yeah, करना छोड़ दें, ये नहीं आप कर yeah, सकते। नहीं नहीं बहुत ही अच्छी आपने एडवाइस दी है। एंड आई थिंक फॉर बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्या कहते हैं डेवलप दिस थिक स्किन, और क्या कहते हैं नॉट लेट मतलब दैट दिस कमेंट्स या नेगेटिव रिव्यूज लेट यू डाउन। एक दो और सवाल हैं विच आई फील हैव बीन डिस्कस्ड इन द क्या कहते हैं yeah, कॉन्वर्सेशन, और फिर एक दो लोग आपको कीप इट अप और बेस्ट विशेस दे रहे हैं। सो विद थैंक दैट यू। क्लोजिंग रिमार्क्स क्या कहते हैं, ब्लिंक ने अभी पार्टनर किया भट्टी बिरयानी के साथ, सो वेरी सून ब्लिंक विल बी गोइंग लाइव और वेब और एप्स लाइव हो रही होंगी भट्टी बिरयानी की, लुकिंग फॉरवर्ड। आप लोग क्या एक पार्टिंग एडवाइस टू बडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो फूड ब्रांड्स खोलना चाह रहे हैं या बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स, आइडियली बोथ, व्हाट वुड बी योर बेस्ट एडवाइस जो शायद आपको किसी ने दी हो व्हेन यू वर स्टार्टिंग, या यू फेल्ट कि इफ आई न्यू दिस एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग दिस वुड हैव रियली हेल्प मी develop या grow better? So what would you say, both of you, one by one? जहाँ तक कंटेंट क्रिएटर्स को लेके बात है ना, ये अब जाके मैं और हमजा भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि डू नॉट हैव कंटेंट फर्स्ट एंड देन बिजनेस उसके पीछे आप बनाने की कोशिश करो। अच्छा। बैकएंड के ऊपर बिजनेस पहले आप सेटअप करो कि इंटरेस्टिंग। मैं पोटेंशियली, द थिंग इज कि हम और औरों के ब्रांड्स के लिए मिलियंस ऑफ व्यूज लाते रहे हैं और हमें उसके बदले पकोड़े मिल रहे थे कंपेरेटिवली। वही अगर आपका, अब हम भट्टी बिरयानी हमने स्टार्ट किया है ना, या वो ही एक वीडियो जो मिलियन भी नहीं, 100,000 क्रॉस कर रही है, उसके अगेंस्ट जो हमारा बैकएंड के ऊपर बिजनेस वी आर गेटिंग, उससे हमें ये रियलाइज हुआ कि बहुत साल पहले ही हमें बिजनेस पहले शुरू करना चाहिए था। कोई जरूरी सही। नहीं कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो, छोटा सा, अगर आप जैसे रिव्यूज करते हो तो आप पहले जो है ना, जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंपनी से बात कर लो कि जी बैकएंड के ऊपर मैं खुद सेल करूंगा उन्हें, और जो कंटेंट है वो आपका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ व्यूज एंड एवरीथिंग। Very solid advice. yeah. Hamza. I would say again, I would say content is a lot of people still say कि यार maybe the ship has sailed and अच्छा। maybe we can't start content or we can't start a business right now. I would say कि this is the best time. आपके जो पर आपके जो नवासे और साले और वो आपके वो जो होंगे ना जब आप दादा दादी बन चुके होंगे तो वो कह रहे होंगे काश क्या आपने उस टाइम पे इंस्टाग्राम खोल लिया होता और कोई हमें एक बना के जायदादें, जब लोग अब बचपन में जैसे जायदादें दिया करते थे ना, तो अब वो जो है ना कहेंगे आपने काश हमें एक इंस्टाग्राम अकाउंट दे दिया होता 10 मिलियन फॉलोअर्स के साथ वाला। मैंने कुछ टाइम पहले रील देखी, आई वाज लाइक डूड दैट इज सो रियल बिकॉज द फैक्ट इज देखें, I read this somewhere. It changed my mindset, and the quote was, "The right time to start is right now. All right. If you want to start, get started." ठीक है, forget about the
past, forget about what other people are doing. You want to do it, you want to then do it for yourself. And either it's content, either it's a business, either whatever it is, okay? You need to be accountable for your own self and for your actions, and you are accountable for your future. If you're not doing it, if you're not putting yourself out there, then कल को regret कोई और नहीं करेगा, आप खुद करोगे. So I think that is where everyone should make sure that they're putting their best, work out there. And yeah. Yeah, I think the audience agrees as well. वहां से message आया, the right time to start was yesterday. The second best time is now. Yeah. Good. So yeah, Yeah. on that note, I would like to thank you both for taking out time of your busy schedule और आपने हमारे साथ ये इतनी insightful conversation share की. Thank you for the audience joining us in. So that's it from our side. Allah Hafiz. Thank you. And Thank you, guys. Thank you. Cheers. Thank you. Bye. Allah Hafiz. Ciao. Bye bye.